the detailing industry concept. I am starting to like the concept as and when I am talking to you. Is that business good? Where do you see the business going in the next 5 years? Introducing Mr. Ravi, the founder of Motor Sounds and the founder of Motor Glaze. Starting with why Motor Sounds, and from Motor Sounds, why did you move to Motor Glaze? People don't buy products. They buy knowledge from someone they trust. सबसे important है people of their car. Yes. One improves driving experience. The other preserves your investment. Definitely बहुत proud लगता है Make in India बोलने के लिए. Retailing is a necessity. Welcome. Today we have a man who has spent around 3 decades and more in the automobile industry, and not only he has watched it grow, he has helped shaped him. Introducing Mr. Ravi, the founder of Motor Sounds and the founder of Motor Glaze. Thank you and glad to be here. Thank you, Rahul. Yes, it's a pleasure for us to host you. And now we'll start with a few questions about What is the agenda like? Why we guys are like sitting here, taking out time, talking about it? What it's all about? Yeah, actually I wanted to know about the industry more. Okay. So I wanted to get a few questions about the industry. Why car audio? Then why into detailing? For me, it is a two separate industries. Yes. So starting with why Motor Sounds, and from Motor Sounds, why did you move to Motor Glaze? Right. I had a few questions in my mind. Okay. So we'll just clear it out for the audience as well. So everybody knows Motor Glaze, but why Motor Glaze, and how did this journey begin? Rahul, the journey didn't begin from Motor Glaze. Okay. Going back 3 decades plus, the journey started from Motor Sounds. Oh, okay. Those years, people were looking for a good sound quality product चाहिए हमें, गाड़ी के अंदर अच्छी music चाहिए. So it was not just selling products, it was selling technology along with the products. Proper से उसको कैसे install करना है, कैसे उसकी tuning करनी है. वहाँ से Motor Sound start हुआ, और Motor Sound से start होते होते धीरे हम लोग ने parallel Motor Glaze भी चालू किया. राहुल, एक बात समझ आई इतने सालों में, people don't buy products, they buy knowledge from someone they trust. ये philosophy है ना, ये philosophy लेके आगे बढ़ा और Motor Glaze चालू किया. Okay. So it was like car audio, and then from car audio you shifted parallelly to car detailing. Right. But अगर तू देखेगा तो I am into that automobile zone only because childhood से वो पैशन रहा है cars का, automobile का, तो ये इंडस्ट्री को तो कभी छोड़ने का प्लान था ही नहीं. तो पैरेलली 2 ब्रांड्स चालू किए हैं, एक मोटर साउंड्स वहां से शुरू किया था, और आज हम लोग मोटर ग्लेज भी कर रहे हैं साथ में. Wow. It's amazing. But my point being, car audio and car detailing, as an outsider, I feel these are two different industries. What are your views on it? Both have one thing in the common. Okay. कार ऑडियो बोलो या डिटेलिंग बोलो, दोनों में एक चीज कॉमन है, पीपल लव देयर कार. सबसे इंपॉर्टेंट है पीपल लव देयर कार. वन इम्प्रूव्स ड्राइविंग एक्सपीरियंस, द अदर प्रिजर्व्स योर इन्वेस्टमेंट. I agree. Now I get your perspective why these two industries go hand in hand, and this is what the thing is about. Yes. If you love the car, yes, may it be audio, may it be paint protection, you need to have a good experience in your car, as well as you definitely need to preserve your investment. These are the 2 points. So दोनों चीजें hand in hand चलेंगी, दोनों की जरूरत है इंडस्ट्री को. Okay. I got the idea why car audio and car detailing. Okay. But I have seen in the accessories industry, a lot of people import their products. So you could have done the similar thing with Motor Glaze, just import it and sell it out. Why manufacture in India? Absolutely right, Rahul, what you said. It's a very easy path. White labeling बहुत easy है. वहाँ से माल मंगाया, अपने बॉक्सेस में पैक करके यहाँ सेल कर दिया. तो उसमें ना इन्वेस्टमेंट है, ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, कुछ भी नहीं है. ये हम लोग ने स्टार्ट किया था, मैं डिनाई नहीं करूंगा, 2017-18 में हमने स्टार्ट किया था 2 साल के लिए. लेकिन हमने देखा कि वो प्रोडक्ट्स वहां से यहाँ आ रहे हैं, वो यहाँ पे 2 आवर सेटिस्फैक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे. मैं देख रहा हूँ इंडस्ट्री में लोग ब्रांड के साथ जा रहे हैं,
कि ये इटली का ब्रांड है, ये जर्मनी का ब्रांड है, बट उनको ये नहीं पता कि इसकी जो परफॉर्मेंस ऑप्टिमम होनी चाहिए वहां पे जो हो रही है वहां वो यहाँ पे नहीं डिलीवर कर पा रहे Okay. बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशंस। यहाँ पे ह्यूमिडिटी है, डस्ट है, सनलाइट है, ट्रॉपिकल रीजन है, कहीं गर्मी है, कहीं बहुत ठंड है। तो ये सब को टैकल करने के लिए जो केमिकल रिएक्ट करते हैं, हर केमिकल का रिएक्शन हर एक क्लाइमेट में अलग होता है, तो ये जो रिएक्ट करते हैं उसको काउंटर करने के लिए हम लोग ने अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम यहाँ पर रेडी की, जिनके साथ बैठ के हमने सारे फॉर्मूलाज फ्रीज किए एंड ऑल दोस फॉर्मूलाज आर सक्सेसफुल फॉर्मूलाज। और डेफिनेटली बहुत प्राउड लगता है मेक इन इंडिया बोलने के लिए। Yes, I totally agree with the fact that Make in India is a very big pride which we carry Yes. as a brand. Obviously. And I respect you being analyzing the entire industry, how the products work, and coming up with something specific for Indian climate. May it be Himachal Pradesh, Himalayan regions, Yes, or you may go- it be Kanyakumari. Yes, you go north, you go south, you can see the diversification of climates. इतना ज्यादा diversify है climate. एक जगह पे स्नोफॉल हो रही है और एक जगह पे ब्राइट हीट है, हाँ, तो केमिकल तो हर जगह अलग रिएक्ट करेगा। सब हमने देख लिया है, सारा जगह पे हम लोग ने ट्राई कर लिया, लेकिन फाइनली जो हम यहाँ पे खुद के टेस्ट से मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसको कोई प्रोडक्ट मैच नहीं कर सकता है। okay. That's why Make in India. दैट्स व्हाई मेक इन इंडिया। The major thing which I think, I might be thinking this, but there are people who also think this. Detailing is a luxury. So how Okay. do you say what are your opinions? Why Okay. is it a luxury? नॉट एट ऑल। डिटेलिंग इज अ नेसेसिटी। Okay. यू बाय अ कार वर्थ 20-25 लाख रुपीस और हार्डली 1% आपको स्पेंड करना उसके मेंटेनेंस के लिए, आई थिंक दैट्स नॉट अ बिग डील। वो आपकी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करके रखेगा। आप जब गाड़ी निकालोगे आपको एक नई कार की फील आएगी, आपके आसपास गाड़ियां खड़ी रहेंगी, उनके बीच में आपकी गाड़ी एकदम चमक के दिखेगी, तो वो क्रिस्प इंटीरियर्स, जब अंदर बैठो एक हल्का गुड अरोमा, एक गुड फील। इन डिटेलिंग में तो बोलूंगा अभी ये नेसेसिटी हो चुकी है। मैं डिटेलिंग को मैं ऑलवेज कंपेयर करता हूँ योर हाउस के साथ। जैसे घर पे आप डेली डस्टिंग करते हो, क्लीनिंग करते हो, व्हाई डू वी नेग्लेक्ट व्हीकल्स? आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। Yes. एवरी मंथ, एवरी 2 मंथ, एवरी 3 मंथ डिटेलिंग होनी चाहिए, इंटीरियर से होनी चाहिए, बाहर से होनी चाहिए। तो आई थिंक इट्स अ काइंड ऑफ अ नेसेसिटी नाउ, नॉट अ लग्जरी एट ऑल। Okay. I agree with you because I travel to end to end from Mumbai, and it takes me around 4 to 5 hours per day commuting back and forth. Okay, So I stay more in the car compared to what I stay at home. that's what I'm saying. What do you think is the biggest myth about the detailing industry as a whole? What I've seen, the biggest myth in the detailing industry is like detailing is only for luxury cars. जो मैंने अभी तेरे को बोला, I don't agree with that. You have an SUV, you have a hatchback, you have a sedan. सब पे पेंट है, सब पे पेंट किया हुआ है, सबके पेंट खराब हो सकते हैं, सबके इंटीरियर्स हैं वो खराब हो सकते हैं, और सबको डिटेलिंग की जरूरत पड़ेगी। Okay. नेसेसिटी है। तो ये जो मिथ लेके लोग बैठे हैं कि मेरी लग्जरी कार है तो ही मैं डिटेलिंग कर रहा हूँ, नहीं, मैं तो बोलूंगा बेसिक से बेसिक कार से लेके टॉप एंड से टॉप एंड कार को, हर कार को डिटेलिंग की जरूरत है। तो ये मिथ ही गलत है। तो डिटेलिंग इज फॉर ऑल द व्हीकल्स। जो गाड़ी आप लेके डेली ट्रैवल करते हो, इट नीड्स डिटेलिंग, इट नीड्स प्रोटेक्शन। द कार पेंट नीड्स प्रोटेक्शन, क्योंकि डस्ट, सनलाइट, कंटामिनेशन, बर्ड ड्रॉपिंग्स, ट्री सैप्स, ये गाड़ी को रुइन कर देती हैं। Yes. ये कोई भी गाड़ी हो। केमिस्ट्री ये नहीं देखती कि आपके पास कौन सी गाड़ी है, केमिस्ट्री ये देखती है कि आपकी गाड़ी है उसको डैमेज हो जाएगा ये केमिकल्स के थ्रू। Okay. तो वहां पे मैं कहूंगा कि हर एक कार को डिटेलिंग की जरूरत है। This is an eye opener for me. Yeah, I was also under the belief that it's a luxury thing to be done, yeah, no. but It is a necessity now. It's for everyone. okay. I have seen motor glaze products. You keep on innovating. Is that intentional or is it just your passion or doing it out of passion? No, Rahul. Absolutely, it's intentional. Okay. ये intentional है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि डेली जो cars we are using, what is better? What we can bring better? I, for a small example, I'll tell you. हम लोग ने एक प्रोडक्ट निकाला, बर्ड पूप रिमूवर। बहुत छोटा सा प्रोडक्ट है। कभी सोचा ये बर्ड पूप कितना बड़ा डैमेज कर सकता है हमारी कार पेंट के लेकर को?
या कार पे जब हम एक्सपेंसिव पेंट प्रोटेक्शन फिल्म लगाते हैं उसको या सिरामिक कोटिंग को कितना डैमेज कर सकता है। और क्या होता है, लोग वो बर्ड प्रूफ का कंटेमिनेशन को डायरेक्ट क्लॉथ से वाइप कर देते हैं, उससे वो डैमेज क्रिएट ज्यादा बढ़ जाता है। तो हम लोगों ने एक इनोवेटिव प्रोडक्ट निकाला, वेट वाइप्स निकाले हैं, विद इन 3 seconds यू कैन क्लीन इट विदाउट डैमेजिंग द सरफेस। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट का हम लोग ने पेटेंट भी ले लिया है। ओह, कांग्रेचुलेशन। यस, थैंक यू। तो ये नए नए प्रोडक्ट्स और नए नए इनोवेशन तो हम करते रहेंगे इंडस्ट्री के अंदर। ये एब्सोल्युटली इंटेंशनल है और ये ही हमारा बोलते हैं ना फोटे है हमारे बिजनेस का। The detailing industry concept. I am starting to like the concept as and when I am talking to you. Is that business good? Where do you see the business going in the next 5 years? राहुल, डिटेलिंग बिजनेस इज जस्ट स्टार्टेड, आई विल से राइट नाउ। ये जो बिजनेस अब स्टार्ट हुआ है, अभी तो मैं बोलूंगा इसके पीछे वार्म अप एक्सरसाइजेस चल रही है पिछले 5-7 साल से, लेकिन एक्चुअल बिजनेस अब चालू हुआ है डिटेलिंग का, और ये मल्टी फोल्ड्स में आगे ग्रो करने वाला है। ये तो मैं आई विल वाउच विद दिस, क्योंकि अगर आप देखो लास्ट 7-8 ईयर्स पहले लोगों को हार्डली पता था कि सिरामिक कोटिंग क्या होती है। हर जगह आप जाओ तो एक ही वर्ड यूज सुनते थे, हम टेफ्लॉन करना है, गाड़ी को टेफ्लॉन करना है। वो पूरा एरा ही खत्म हो चुका है। लोग बोलेंगे टेफ्लॉन टेफ्लॉन खत्म हो चुका है। अब हर गाड़ी को लोग सिरामिक कोटिंग करते हैं। वो अभी नया ट्रेंड आ गया है, वो अभी नई पॉलिश है, वो अभी नया वैक्स है, वो अभी नया टेफ्लॉन है, सिरामिक कोटिंग। और पेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए पेंट प्रोटेक्शन फिल्म आ चुकी है। तो ये इंडस्ट्री बहुत डायनामिक है और बहुत रैपिडली ग्रो हो रही है, और ये हर साल भी नहीं, मैं तो बोलूंगा हर 2-3 महीने में नया कुछ आएगा। And this is the next big thing happening in the automobile industry for the aftermarket business. So do you think the accessory business, what it stands currently, the detailing would cross that? 100% will cross the accessories business, क्योंकि अगर आप देखो accessories business में कहीं ना कहीं लोग बोले नहीं बोले, लेकिन धीरे धीरे लिमिटेशन आ रही हैं, ईवी कार्स आ रही हैं, यू आर नॉट एबल टू टैम्पर द केबल्स, किसके कपलर्स नहीं अवेलेबल है, तो कहीं ना कहीं हम लोग रुक जाते हैं। इवन द कस्टमर हैज अ मेंटालिटी कि नहीं यार मेरी ईवी है, इसमें ये नहीं करो, वो नहीं करो, नई गाड़ी है, इसको वारंटी वॉइड हो जाएगी। लेकिन कार तो मेंटेन करनी है, कार को तो ब्यूटीफुल रखना है, कार को तो हाइजीनिक रखना है। तो ये जो डिटेलिंग इंडस्ट्री है नेवर एंडिंग इंडस्ट्री है एंड मल्टी फोल्ड से ग्रो होगी, दैट इज माय गारंटी। एक एडवाइस जो इस बिजनेस में आना चाहता है, जो डिटेलिंग बिजनेस में आना चाहता है, कोई एक यंगस्टर है या कोई जो है जिसको बिजनेस स्विच करके डिटेलिंग में आना है, व्हाट इज दैट वन पीस ऑफ एडवाइस? देख, मेरे पास डेली कोई ना कोई इंक्वायरी आती है, दे वांट टू गेट इनटू दिस बिजनेस। मे बी इट इज अ यंगस्टर और इवन द एग्जिस्टिंग कार डेकोर गाइस वांट टू एंटर द बिजनेस। पहली बात मैं बोलूंगा, प्रॉफिट्स के पीछे भागो मत, लेकिन प्रॉफिट्स छोड़ने भी नहीं है। वी आर बिजनेसमैन, देखो, वी नीड टू अर्न एंड वी हैव टू शो द नंबर्स। तो बट व्हेन आई टॉक अबाउट गेटिंग इनटू एन इंडस्ट्री, आप प्योरली प्रॉफिट्स के हिसाब से मत आइए, उसके अंदर साइंस थोड़ा सीखिए। ओके, सरफेस टेक्नोलॉजी क्या होती है, केमिस्ट्री क्या होती है, अंडरस्टैंड द कस्टमर्स, अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट्स। एक गाड़ी है तो वो अगर मेरे पास आ रही डिटेलिंग के लिए, तो मैं उसमें डिलीवरेबल क्या क्या दे सकता हूँ। पुट योर पैशन इनटू इट। बिना पैशन के तो इस इंडस्ट्री में आना तो इट्स कंप्लीटली यूजलेस, यू विल बी लूजिंग लॉट ऑफ मनी। अगर आपके पास पैशन है इस इंडस्ट्री में आने के लिए, तो ही मैं सजेस्ट करूंगा आप इस इंडस्ट्री में आइए। I have read your article. You have been mentioning the knowledge bar. Is that what you are telling the youngsters? डेफिनेटली मैं बोलूंगा, कार ऑडियो है तो बिना नॉलेज के कोई काम का नहीं है। अगर आप कार डिटेलिंग इंडस्ट्री में आना चाहते हो, तो भी आप ऑफिस में नहीं बैठ सकते। यू हैव टू कम आउट, चेक व्हाट केमिस्ट्री इज, व्हाट इज द सरफेस, कौन सा काम कैसे करना है, कौन सा कार की डिलीवरी दी है आपने, तो वो 100% अप टू द मार्क है कि नहीं। तो हर छोटी छोटी चीज को ध्यान से देखना है, इसीलिए इसको कार डिटेलिंग बोलते हैं। I'll do a rapid fire question round. Okay. I'll ask you questions, whatever you feel right. Okay. It may be according to your taste. Okay. But I need the answers. Okay. In a rapid fire manner. Okay. Are you up for it? Yeah, done. So foam wash or bucket wash? Bucket wash done correctly. Ceramic or PPF?
Ceramic or PPF, again, that's a customer's choice. Okay. Favorite car to detail? Any car that a customer has. Okay. And ceramic coating or polish? Ceramic coating. Ceramic coating or graphene? It again depends on the customer's choice. Okay. And one mistake the detailing industry makes. Wiping dust with a dry cloth. Oh. So guys, this wraps up our first episode. I hope you have a great time. You should feel free to ping the questions down below so that I can come up and ask Mr. Ravi about these in the next episode. Thank you guys. Thank you so much. Thank you, Rahul. Thank you. Cheers and bye.